she's a proud Amazonian as well as Hardonian, which is very, very important. And she's done exceedingly well in the NEET PG 2021. She's amongst the top rankers. So, and the beauty of it is that when Tanya was at your level, she used to organize all this. So she has been an all-rounder. And Tanya Aja. And she would, and more and more people from Harding are doing exceedingly well in all the exams, be it Central Institutes, be it NEET PG, right? So, Hardonians, Katir, you have to make it, happen in your first go. It is not difficult at all. Little small steps जो आप लोग अभी से लोगे, they will, make you come to a big level eventually. I think I'll hand over the stage to Tanya and she'll say something. Come. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. Hello, everyone. So, how many are Hardonians here? Nice. And you are from? Okay, Delhi, huh? So, enjoying Fest 3 days. These are the only days where we enjoy. Enjoying, obviously, in medical colleges. Enjoying? Yes. Days? Yes. See, I am really grateful to the entire DAMS team because my prime source for all the preparation was DAMS. As I was a foundation student in DAMS since 3rd year, how many have you already joined or thought of doing it? Not joining, but the PG I'm asking. Yes, raise your hands, it's okay. I don't know your names, it's okay. How many of you have already thought of cracking the NEET PG or AIIMS? It's your choice. Nice. So, even I thought of it in 3rd year, but I was not very much, very much planned for it. So, there was a meeting, I must share this with you. Like, you must have had meetings with ma'am and sir during the fest. So, I had one meeting in their office. And we talked about Fest, everything we have, sorted, all fine. So ma'am told me, listen, you promised me. You will ask, we'll provide you, we'll arrange the quiz and all that, but in return, I want your interview. And I was in 3rd year. I was like, abhi to socha hai. Aap, ek hota hai na, agar ma'am ne bola ki, promise me that you'll come for interview. And that was somehow in my mind. Wahan se to haan karke I came out. But when I stepped out of the room, there are some people, some sayings which gets imprinted. आपके दिमाग में भी किसी ने कभी ना कभी कुछ बोला होगा. So that was a big motivation factor for me, and I'm really thankful, ma'am, for that, because it was always there in my mind that ma'am has made me promise me, and yes, I will come to you. Thank you. So once you start thinking about it, I must say that start taking small steps towards it. You cannot, do everything in one go or in a month or in 2 months. It is a journey of, it is a long journey. And the motivation, the positivity, the need to get going, it should be there. And no other than sir and ma'am, they are the best motivators you will ever find because they relate with us very well. Don't you think so? Every time they come live, or I do not know whether you have attended the sessions or not, they relate with us very well, and you can anytime reach to them and they are there for you. So the motivation, the positivity is what is required as you need to get going in this journey. And this is what, there are times when I felt low. Obviously, everybody does. मेरा तो delay ही इतना हो रहा था कि अभी किया कल नहीं exam, फिर किया फिर नहीं exam. So I need that motivation, and I used to hear for ma'am and sir also put podcasts on Spotify and give a listen to it. मतलब एक बार. So have you listened to it? Anybody? Yeah. So that makes you feel that you can do it even when you don't know that you can do it. That is what is required. Self-belief, self-confidence. So go for it, work for it, find your prime source. And I think DAMS is the best for me because my notes, my TNDs, they all were of DAMS, but it's your choice. I will recommend DAMS if you would ask me because this is what my source is. So all the very best, everyone, and start doing it if you have already thought about it. Thank you so much.
crisp and short, and so that because मुझे ऐसा लगता है कि इतने समय के बाद you guys have a festival and there are so many other things to be done. We will keep it very crisp and very, very interesting. But first of all, I'd like to congratulate Tanya for the excellent rank in sports, because I remember we came to this, I think 4 years back, 5 years back, I think, when she was one of the organizers, and then she has been an organizer in multiple events here. And to see this, it's heartening, and it is important for everybody to understand that you can be an all-rounder. You can do everything and still score really well in the exams. So let me take you back to the point where you were in your class 11th or class 12th. जब आप 11th में थे, 12th में थे, somebody must have asked you कि डॉक्टर बनना चाहता है कि बनना चाहती है, ऐसा किसी ने पूछा था स्कूल में, काउंसलर ने किसी ने बात की थी ऐसी? और इमीडिएटली उसके बाद बोला था ये मुश्किल होगा, बोला था कि टफ है, ये मेहनत बहुत करनी पड़ती है बच्चे, और किसी अगर एमबीबीएस के बच्चे के पास चले गए तो उसने बोला होगा मत नहीं, बोला नहीं था किसी ने सीनियर में जाके. सो देन उसके बाद भी हम आए यहाँ पे, उसके बाद भी हम आगे आए, और यू केम इनटू द मेडिकल फील्ड. उसके बाद थोड़े दिन के बाद ना इनिशियली और दैट मोटिवेटेड बच्चा के बहुत अच्छा करना है, नोबेल प्राइज लेके आना है, वो कैडेवर के साथ फोटो सब कर लिया है, मैं सब कुछ मैंने फोड़ना है, सारी नई ड्रग्स बनानी है, और थोड़े दिन बाद किसी तरह यार अपन पास हो जाए, किसी तरह से यार ये आगे बढ़ पाऊं, ये इंटीग्रेटेड करिकुलम आ गया, कोई सीपीएम ही समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है ना. ऑल दिस हैपेंस, बट आई वांट यू टू रिमाइंड यू. मैं दोबारा से सबने डिस्करेज किया जब क्योंकि मैं जब स्कूल से मेरा रैंक आया तो मेरा आईआईटी में भी रैंक था, मेरा पीएमडी में भी रैंक था. तो जब मैं पहले दिन मौलाना साहब मेडिकल कॉलेज में आया, मेरा ऑल इंडिया रैंक 4 था. तो मेरे जो सीनियर मिले रैंकिंग करने के लिए, उन्होंने कहा कि उन्होंने पूछा कि तेरा कहीं और रैंक नहीं आया? बोला आईआईटी में भी आ रहा था. कहता आईआईटी में आ रहा था तो यू कैन फिल अप द ब्लैंक के वो रैंकिंग में कैसे बोलते हैं उसके बाद में. बोले यार तू डैश है तो आ गया यहाँ पे. आई वाज लाइक क्या कह रहा है. फिर मैं दूसरी जगह रैगिंग के, हमारे समय में रैगिंग बहुत होती थी, तो दूसरे हॉस्टल में चले गए, रैगिंग हो रही है. वो कह रहा है यार तू क्यों आ गया यहाँ पे. क्या कह रहे हैं यार, मैं तो जीत के आया हूँ ना, मैं तो जीत के आया हूँ, मैं तो रैंक 4 लेके आया था ऑल इंडिया, मैं तो जीत के आ रहा हूँ यहाँ पे, ये क्या कह रहे हैं कि मैं हार गया. So then I realized कि it is a temporary phenomena that happens in the medical college when you have to study. जो पढ़ना होता है, और ये सेम चीज आप रेजिडेंस में देखेंगे जब पीजी कर रहे होंगे आप, जब आप इंटर्न की तरह उनके पास जाओगे कि मैं सर्जरी में आने वाला हूँ, मैं सर्जरी ज्वाइन करना चाहता हूँ, या आप बोलेंगे मैं ऑब्स एंड गायनी ज्वाइन करना है, या कोई हेल्थ ब्रांच ज्वाइन करना है, तो जो रेजिडेंट डॉक्टर वहां पे होगी ना, बोलेगी क्या कर रही है यार, मत आ यहाँ पे, है ना. सो इट्स लाइक उसको सीरियसली मत लो. वो टेम्परेरी फॉर्मूला है जो डॉक्टर्स इन मेकिंग को जब हम पढ़ रहे होते हैं वो ऐसा बोल रहे होते हैं, थिंक आउट कर रहे होते हैं. इट्स नॉट दैट दे आर नॉट एंजॉयिंग द प्रोसेस, वो बनना चाहते हैं. गिवन अ सेकंड चॉइस, ऐसा मेरे पास कोई जिंदगी में अगर कोई दूसरी चॉइस दे मैं फिर से यही करूंगा, तीसरी चॉइस देगा फिर भी यही करूंगा, बिकॉज आई लव बीइंग अ डॉक्टर. तो मैं चाहता हूं आप इसको कभी अंडर एस्टिमेट ना करें, दैट यू हैव अ ब्यूटिफुल साइंस दैट यू आर लर्निंग. इसको मत भूलें, और आप चाहते भी थे करना. And the key here is when you start enjoying it, then it will not feel like work. जो बाद में जो भी बात हम करेंगे एग्जाम की और सब, you know this कि इंडिया का मेडिकल एजुकेशन का लैंडस्केप पूरी तरह बदल रहा है. पूरी तरह बदलना मतलब कि जैसे आई एम श्योर आपने फर्स्ट प्रॉफ जो बच्चे हैं अभी या जिन्होंने दिया होगा अभी, it is not the first professional that used to happen in the past. It is all clinical. It is having a lot of clinical इंडिया पेरिफेरीज के अंदर, इंडिया के पेरिफेरीज में कई कॉलेजेस में बच्चे मेरे पास आते हैं आजकल कि सर हम फर्स्ट प्रॉफ ही पास नहीं कर पा रहे, क्योंकि नोबडी हैज एन आइडिया कि उनके कॉलेज में कि करना क्या है यहाँ पे, क्योंकि यू आर नॉट सपोज्ड टू हैव अ क्लिनिकली इंटीग्रेटेड फर्स्ट प्रॉफ. एंड द विजन ऑफ द गवर्नमेंट टुडे इज कि फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स यू शुड हैव क्लिनिकल कैपेबिलिटीज. तो यहाँ से वो सब चेंज हो रहा है. एंड द एग्जाम सिस्टम इज ग्रेजुअली टेकिंग यू टू a change which is going to be landmark. I just wanted to make sure that I update you on it कि जब आपका final year खत्म होगा, now when I graduated and when I finished my final year, उसके बाद you become a doctor. मतलब हमारे यहाँ वैसे हो जाता था. अभी ऐसा नहीं है. You finish your final prof, they will take a licensing exam. They will take a licentiate exam called as NEXT, and this is going to be implemented from 2023 onwards. यानी 2023 से नेक्स्ट का पेपर शुरू हो जाएगा. एंड व्हाट विल हैपन इज
If you pass the next part 1, which is going to be MCQ based, I'm open to questions if anybody has any questions also. So if you pass next part 1, then only you can become an intern. It is not like a guarantee. अगर पास होंगे तभी internship कर सकते हैं, नहीं तो दोबारा से पेपर देना पड़ेगा. Is that clear? Once you pass it, within 2 years you have to finish your internship. That is the protocol now. After internship, now so far now, as of today, if I finish my internship, am I good enough? Am I not good enough? उसको कोई टेस्ट चेक नहीं कर रहा. वो कह रहे हैं ठीक है, कॉलेज वालों ने साइन किया लॉगबुक पे, एनफ है. अभी ऐसा नहीं होगा. इंटर्नशिप के बाद नेक्स्ट पार्ट 2, which will be testing your internship skills, which will be pass or fail paper. Once you pass it, you become a licensed doctor. You might say, sir, what about NEET PG? So NEET PG would no longer be there. Your PG seats will be allotted on the basis of score that you get in next part 1. I hope this gives you the idea. But it all might feel like, कभी-कभी ऐसा लगेगा आपको, ये तो सर फिर से रैट रेस में आ गए. अभी थोड़े दिन पहले तो वो हम वहां पे जो PMT के क्लासेस में कर रहे थे, उन्होंने बोला था एक बार PMT पास होगा उसके आगे जिंदगी सफल है. और आज हम सफल होके एक फेस्टिवल में आए और आप कह रहे हो आगे भी एग्जाम होगी, क्या बात है. सो आई थॉट आई हैव टू गेट यू आउट ऑफ दिस डेस्टिनेशन हंटिंग. ये एक गलती है जो कभी कभी हम शुरू के फेजेस में मेडिकल करियर में करते हैं. हम सोचते हैं कि मेडिकल करियर एक डेस्टिनेशन है, यहां तक पहुंच जाएंगे तो जिंदगी सफल हो जाएगी. यहां तक ये डेस्टिनेशन है ही नहीं, जर्नी है. इसको इस तरह विजुलाइज मत करो कि एक बार फर्स्ट प्रॉफ खत्म हो गया फिर मैं एंजॉय करूंगा. ऐसा नहीं, एंजॉय भी अभी करना है, पढ़ना भी अभी है, सीखना भी अभी है, सब कुछ अभी है, अभी. और यही की है यहाँ पे कि ये जर्नी है. और मैं आज भी सीख रहा हूँ. मैंने मेरा एमबीबीएस मौलाना मेडिकल कॉलेज से किया. और मैंने जब एमबीबीएस किया तो मैं उस समय मेरा एम्स में यूजी में रैंक नहीं आया था. मेरा ऑल इंडिया सीबीएसई वाला एग्जाम है जो पीएमटी में 4 रैंक था. एम्स में मेरा रैंक नहीं आया उस समय पे सिर्फ एक कारण से, क्योंकि मैं जिस स्कूल से पढ़ता था वहां पे टेंट्स वगैरह में हमारी क्लास होती थी. वहां पे कोई जानता नहीं था कि एम्स के पेपर में असर्शन रीजनिंग आती है, सब किसी को पता ही नहीं था. तो हमें पता ही नहीं था. उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह थी कि हमें लगता था हम एम्स के अंदर रैंक ला ही नहीं सकते थे, ऐसा सोचते थे हमारे स्कूल के लोग. तो हम उसको वहां पर कोई अगर बच्चा पढ़ रहा होता था स्कूल में, एम्स की जो किताबें वगैरह रहती थी असर्शन रीजनिंग की, तो सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे कि हीरो बन रहा होना कुछ है नहीं, है ना. सो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको भी कई बार आपके आसपास के लोग, जब आप कुछ पढ़ रहे होंगे, आप कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहे होंगे, लोग आपको रूल आउट करने की कोशिश करेंगे. आपको बोलेंगे इतना क्यों पढ़ रही है, कुछ नहीं होता है, इग्नोर करना. मैंने ये सीखा कि मैंने स्कूल के समय पे एम्स की तैयारी को सोचा ही नहीं. एंड व्हेन आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 4 इन माय सीबीएसई पीएमटी, आई थॉट यार ये तो मैं कर सकता था. लेकिन क्योंकि असर्शन रीजनिंग के बारे में नहीं सोचा था, तो वहां पे यू बिकम टेंटेटिव. अगर भाई आखिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, आखिर में किल करना पड़ता है. 5 क्वेश्चन इधर एंड यू गो आउट ऑफ द गेम. So when I was pursuing my graduation from मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, वहां पे मैं क्योंकि पहले दिन से सीरियस था कि पढ़ना चाहता हूं, तो मैं सीनियर के पास गया कि मुझे पढ़ना है. मिडिल क्लास घर से थे, पढ़ने आए थे, और तो कुछ हमारे सपने नहीं थे. वहां पे पढ़ना चाहते थे, अच्छा करना चाहते थे जिंदगी में. तो कॉलेज में गए तो जिससे मैंने पूछा कि किताब कौन सी पढ़नी, कौन सी किताब पढ़ो फर्स्ट ईयर में कि फिजियोलॉजी अच्छे से आ जाए, एनाटॉमी अच्छे से आ जाए. एंड ऑल माय सीनियर सेड कि तो बड़ा हीरो बनना है तेरे को, बड़ा हाइपर है तू, इतना पढ़ के क्या करेगा, कुछ नहीं होगा यहाँ पे. रियलाइज किया यार पूछ के कुछ नहीं होगा, मुझे खुद ही सोचना पड़ेगा. आई हैव टू क्रिएट माय ओन पाथ. मैंने किताब को तोला, हाथ में रखा, ग्रेज एनाटॉमी, बीडी चौरसिया. मैं समझ गया कि बीडी चौरसिया पढ़नी है. फिर मैंने गिनोंग और एक और किताब उठाई, विच इज लाइक आपका नाम मुझे नहीं बोलेंगे पता नहीं, एक गिनोंग और एक और किताब उठाई जो सब कह रहे थे पढ़ने में. वेट बराबर लगा मुझे, मैंने गिनोंग पढ़ ली. तो मैंने ये सोचा कि अगर वेट बराबर है और तो फिर ज्यादा अच्छी वाली किताब पढ़ूंगा जो ज्यादा इंटरनेशनल ऑथर से लिखी गई है, वो पढ़ूंगा. इसी तरह मतलब मैं रॉबिन्स पढ़ी मैंने सेकंड ईयर में. इस तरह से मैं अच्छी किताबें पढ़ता रहा. एंड माय सेकंड मैसेज टू यू इज वेयरएवर पॉसिबल रीड क्वालिटी बुक्स. आप सिर्फ एक दिन के लिए, एक प्रॉफ के लिए या एक ट्यूटोरियल के लिए नहीं पढ़ रहे, आप जिंदगी के लिए पढ़ रहे हैं. जहां हो सके अच्छी किताब पढ़ें, लेकिन ऐसा भी ना हो कि वो किताब एमडी लेवल की किताब हो. जैसे ग्रेज एनाटॉमी है, वो एमडी एनाटॉमी लोग पढ़ रहे होते, कई बार आप नहीं भी कर पाते. वो उसको मतलब थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है. मेरे लिए वो लाइन, क्योंकि मैं
एवरेज स्कूल से था, तो मुझे पता नहीं था, तो मेरे लिए वो लाइन मैंने उससे बना ली, वेट से बना ली कि किस कौन सी किताबें मतलब तोल के देख लेते हैं कि अपने बस की है कि नहीं। दूसरी चीज जो मैंने वहां पे शुरू की कि जब मैं अपने समय पे पढ़ रहा था तो मैं नोट्स बनाता था। जब भी कुछ लगता था कि साथ में पढ़ते हुए नोट्स बना लेता था। तो मुझे ये लगता है कि बातें छोटी हैं लेकिन ये सब काम आएंगी। अच्छी किताबें पढ़ी, अपने आप को रूल आउट नहीं किया। स्कूल में गलती की अपने आप को रूल आउट करने की, लेकिन एक बार जीतने के बाद यू नो कि यार मैं कर सकता हूं, तो मैंने अपने आप को रूल आउट नहीं किया। उसके बाद कभी हमेशा अच्छी किताब पढ़ी जहां तक हो सकती थी और नोट्स बने। मैं इंटर्नशिप में आया मेरे कॉलेज के अंदर, हमारे समय पे डैम्स नहीं था क्योंकि हमने बाद में बनाया। दिस एंटायर सेगमेंट ऑफ पीजी प्रिपरेशन और इनफॉर्मल एक्स्ट्रा एजुकेशन कुछ था ही नहीं उस समय। सो वी हैड नो आइडिया व्हाट टू डू, लेकिन मेरे पास नोट्स थे जो मैंने अपने हाथ से लिख के बनाए हुए थे। इंटर्नशिप बिजी थी दिल्ली के ऑलमोस्ट हर कॉलेज में, हार्डिंग में भी, एमसी में भी, एम्स में थोड़ा सा कभी कभी लाइट करते, कभी कैसे करते, लेकिन काम करना पड़ता है मतलब। तो अगर पहले सोचा होता है तो हम उसको ज्यादा यूज कर पाते हैं, पहले सोचा हो तो ज्यादा यूज कर पाते हैं। तो मेरे पास नोट्स थे। मेरे साथ के और बहुत सारे लोग थे जो होशियार थे। होशियारी का पैरामीटर ये था कि वो कॉलेज में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। कई लोग कॉलेज में फर्स्ट आ रहे थे, सेकंड आ रहे थे, थर्ड आ रहे थे, गोल्ड मेडल आ रहे थे। मेरा किसी भी कॉलेज के एग्जाम में कहीं मेडल नहीं आया, मतलब कोई मेडल नहीं आया। मैं आज तक कॉलेज के स्टेज पे जाके मैंने कभी मेडल नहीं लिया। दिया है बाद में जिंदगी में आगे आती, लेकिन लेने कभी नहीं गया है और कोई डिस्टिंक्शन भी नहीं आई। तो लेकिन मैंने ये सीखा वहां पे कि फिर भी मैं अपने आप को रूल आउट नहीं करता था। मैं कहता नहीं मैं कर लूंगा यार, यहाँ इस एग्जाम में नहीं आया, आखिर में कर लूंगा। इंटर्नशिप में अपने नोट्स पे फोकस किया, एमसीक्यू को पैरेलल लेके चला गया और मेरे से होशियार बच्चे जो थे वो हैरिसन पढ़ रहे थे, डेविडसन पढ़ रहे थे, मैं नोट्स पढ़ रहा था। सो द थर्ड मैसेज इज आखिर में टाइम कम होता है, सब्जेक्ट ज्यादा है, तो जिसने कंसाइज कर रखा होता है वो ज्यादा कवर कर पाता है। And sometimes you may be beaten in the exam by somebody who is less intelligent than you. इंटेलिजेंस का पैरामीटर मैं खाली एग्जाम दे रहा हूँ यहाँ पे, मुझे और कुछ नहीं वहां पे पता। तो कॉलेज के एग्जाम में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे हैं दूसरे बच्चे, लेकिन पीजी में मैं ज्यादा बेहतर रैंक निकाल गया। तो उस समय मेरा एम्स में रैंक आया। एम्स के अंदर क्यों आपके पास रैंक सिर्फ इसलिए आया क्योंकि मुझे पता था मैं पहुंच सकता हूँ। मैंने एम्स के अंदर गया, वहां पे मैं काउंसलिंग में गया। काउंसलिंग के अंदर एम्स के अंदर गया, मैंने पूछा कि क्या मिल रहा है। मैं भी वो नेव टू बी ऑनेस्ट, इसीलिए मैं अभी करियर काउंसलिंग भी कर रहा हूँ। जो बच्चे तानिया की तरह जिन्होंने अच्छी रैंक निकाली है, इनके लिए अभी हम डैम्स में करियर काउंसलिंग कर रहे हैं, जहाँ पे मेक देम टॉक टू डिफरेंट स्पेशलिस्ट के बात करो और देखो तुम क्या करना चाहते हो। हमारे समय में कोई कर ही नहीं रहा था। इट वॉज लाइक टेकन के यार कोई मदद नहीं, जरूरत है, ये बच्चे होशियार है। वी आर नॉट। मैं गया काउंसलिंग, उन्होंने बोला क्या लेना है, मैंने कहा क्या क्या मिल सकता है। तो उसमें बोला मेडिसिन मिलेगा, मैंने कहा इसमें बाद में आगे पढ़ना पड़ेगा। कहते हाँ डीएम, मैंने कहा बहुत थक गया हूँ। बोला सर्जरी, मैंने कहते हैं हाँ, मैंने कहा तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। कहते न्यूरो सर्जरी, मैंने कहा डायरेक्ट मिल जाएगी आपको, कहते डायरेक्ट मिल जाएगी। मैं 6 ईयर, कहते 6 ईयर मिल जाएगी। मैंने कहा इसके बाद बीच में एग्जाम लोगे? उन्होंने कहा नहीं बीच में कोई एग्जाम नहीं, आ जाओ। ये लोग नहीं वैसे न्यूरो सर्जरी। मैंने और उस समय मैं सोचता हूँ कुछ भी कर सकता हूँ, मैं आज भी सोचता हूँ, लेकिन उस समय ज्यादा सोचता हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये मैं चाहता हूँ कि मेरी गलतियों से आप सीखें आप कि मैं कुछ भी कर लूंगा। तो उसने कहा न्यूरो सर्जरी कर लेते हैं। न्यूरो सर्जरी ज्वाइन की, उसमें 2-3 महीने मैं काम करता रहा। वहां पे मैंने फिर थोड़ी देर में अपने आप को देखा कि आई एम एंजॉइंग द इमेजेस मोर देन सर्जरी। मुझे अपने बारे में पता चला कि नहीं यार, मैं तो इमेजेस, मैं रेडियोलॉजी में आना चाहता हूँ, है ना। तो लेकिन मुश्किल डिसीजन था। एम्स न्यूरो सबने कांग्रेचुलेट कर दिया था, जैसे आप अभी तानिया हमने कांग्रेचुलेट किया, मेरे तो घर वालों ने भी, सबने, रिश्तेदार दूर दूर से कांग्रेचुलेशन आ गई थी, एम्स न्यूरो सर्जन बन गया हमारा बच्चा। एंड आई वाज फीलिंग लाइक कि मैं उनके लिए कर रहा हूँ कि अपने लिए जिंदगी जी रहा हूँ। एंड आई वाज कंफ्यूज्ड। फाइनली एक दिन मैं मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास गया, मैं अपना रेजिग्नेशन दिया, बाहर आया, मैंने रेडियोलॉजी ज्वाइन करी। सो मैंने इस तरह से गलतियां की है जिंदगी में, आप भी करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ हमेशा ठीक होगा, ऐसा नहीं होगा कि हमेशा सही डिसीजन ले पाऊंगे, ऐसा नहीं। लेकिन आगे बढ़ना पड़ेगा गट फीलिंग के साथ। हर बार शो अप करना पड़ेगा, हर बार आगे बढ़ के बोलना पड़ेगा कि मैं डिसीजन लूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने कॉल लिया, मैंने छोड़ दिया वहां से और मैं रेडियोलॉजी ज्वाइन किया हार्डिंग में, क्योंकि उस समय पे दिल्ली का एग्जाम अलग होता था और इंडिया पीजी अलग होता था। क्योंकि मैं एम्स में ज्वाइन कर लिया था, मैंने दिल्ली पीजी का एग्जाम देने नहीं गया था क्योंकि उस दिन मेरी बाइक खराब थी। एंड कैन यू सी द इडियोटिक रीजंस ऑफ यूथ। मेरे बाइक ठीक नहीं, मैं पेपर देने नहीं गया। तो मेरा ऑल इंडिया रैंक 4 आया। तो ऑल इंडिया रैंक में उस समय पे सिर्फ 2 ही सीट थी दिल्ली के अंदर रेडियोलॉजी के अंदर। अब सीटें बढ़ गई हैं पीजी के अंदर, उस समय बहुत कम थी। सो आई ज्वाइन इन हार्डिंग।
मुझे लोगों ने बोला यार यहाँ पे चीजें कम है सीखने के लिए, तो अब कैसे करेगा? उस समय थोड़ी कम थी, अभी तो आपका बहुत ही बढ़िया कैंपस बन गया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द एंटायर कैंपस दैट इज कम अप। एंड हमारे समय पे ये कैंपस डीन ऑफिस के बाहर पे एक ग्लास की मूर्ति के अंदर पड़ा रहता था, एंड दैट इज व्हाट वी हैड सीन व्हेन वी जॉइंड। उन्होंने बोला था ये आएगा जब तक तुम एमडी खत्म करोगे ये कैंपस आ जाएगा। आज 20 साल हो गया, अब आ गया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। मतलब प्रोग्रेस हैपेंस, लेकिन दिखता नहीं है। ह्यूमन लाइफ थोड़ा सा ज्यादा तेज भाग रहा है, प्रोग्रेस अलग स्पीड पे आ रहा होता है। सो आई केम देयर, मैंने यहाँ पे आया, मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, मैं तो आगे बड़ा बनना और सीखना चाहता हूँ और करना चाहता हूँ। मैंने कई चीजों के अंदर मैंने ये देखा कि जैसे कोई चीज वहां पे यहाँ नहीं हो रही थी, तो मैं पास के डायग्नोस्टिक सेंटर में चला गया। मैंने बोला मुझे सीखना है। उन्होंने बोला शाम में आके बैठ जाएगा। पीपल विल हेल्प यू प्रोवाइडेड यू हैव द इनिशिएटिव। हमने कई चीजें सीख ली। करते करते मैंने कई स्टूडेंट्स पढ़ने हमारे पास आने लगे। हमें लगा कि ये पढ़ाना भी अच्छी चीज है, मजा भी आ रहा है, आज भी मजा आता है पढ़ाने में। तो स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहे, उनके रिजल्ट आने लगे। उन्होंने बोला और जगह पे खोलो। धीरे धीरे आज हम 250 शहरों में पूरे इंडिया में अपने सेंटर खोले, और हमारा जो ऐप 5 लाख डॉक्टर है इंडिया के अंदर। 11 लाख डॉक्टर्स टोटल है हमारे, 5 लाख ऑलरेडी है उसके ऊपर। 500,000 डॉक्टर्स आर ऑन अवर प्लेटफॉर्म टुडे। एंड व्हेन आई लुक बैक, अगर मैं सोचता कि इनमें से कुछ भी मैं कर सकता हूँ, मैं उस समय मुझे लगता नहीं कर सकता, लेकिन बढ़ता गया आगे। एंड दैट इज द ओनली थिंग आई वांट यू टू सी, कि वो जरूरी है प्रोग्रेस। एंड इफ यू हर्ड द टॉपर आल्सो, शी सेड कि प्रोग्रेस, आगे बढ़ना है, थोड़ा आगे बढ़ के हर दिन, कोई बात नहीं, हर दिन कुछ तो आगे बढ़ो ना। और दूसरी चीज जो चाहिए वो लाइक टू अप्रिशिएट भावी कह रहे इनिशिएटिव, है ना। नहीं आता कोई बात नहीं, आगे आएंगे तो सही, देखते तो सही क्या पूछेंगे, है ना। लेकिन गो बैक एंड एनालाइज द क्वेश्चंस दैट यू गॉट रॉन्ग। उनमें से कुछ सीखेंगे, 2 बातें सीखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। यानी दिस इज द एंटायर सर्कल। नाउ फाइनली टू गिव यू सम हेड्स अप ऑन द पैटर्न्स एंड थिंग्स एक्सपेक्टेड इन द एग्जाम। एग्जाम फाइनल ईयर के बाद में होगा। 2022 लास्ट नीट पीजी होगा। 2023 से नेक्स्ट का एग्जाम होगा, मैंडेटरी एग्जाम है। सो यू मे क्लोज योर आईज, यू मे से मैं तो अभी नहीं देखूंगा इसके बारे में, नहीं, पेपर मैंडेटरी होगा, पास करना जरूरी होगा, नहीं तो इंटर्नशिप नहीं कर पाएंगे। इट्स लाइक इट इज दैट काइंड ऑफ सीरियसनेस देयर। एमबीबीएस की सीटें बढ़ेंगी, ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं और आगे और बढ़ेंगी। सो आई होप यू गेट द हैंग ऑफ इट। जस्ट टू गेट द हैंग ऑफ इट इज, व्हाई डू यू थिंक ऑल दिस इज हैपनिंग? व्हाई डू यू नीड अ एग्जिट एग्जाम? क्यों चाहिए? Because the number of medical graduates are being increased at a pace like never before. ये जो एमबीबीएस की सीट्स आ जाए, ऐसी पहले कभी भी नहीं थी। तो इतनी ज्यादा जब सीट्स होंगी तो उसको क्वालिटी कंट्रोल लाना पड़ता है। जब भी वो सीट्स को इतना ज्यादा बढ़ाते हैं तो क्वालिटी कंट्रोल आउटकम के ऊपर लाने के लिए लाइसेंसिएट एग्जाम लाए। अमेरिका में भी ऐसे ही। नाउ ऑल्सो आई वांटेड टू, आई फील इट्स माय ड्यूटी एज अ मेंटर टू गिव यू अ हेड्स अप कि it is not the landscape in medical education that is changing in India, it is changing it worldwide. Even in America, your licensing exam, which is called as US medical licensing exam, the step 1 exam from 2022 onwards will become pass and fail. यानी जो बेसिक साइंसेस का पेपर होता है अमेरिका का, सिर्फ पास फेल का होगा, उसमें स्कोर नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आपका स्टेप 2 सीके, जो वहां पे क्लिनिकल पेपर होता है, उसमें स्कोर मिलेगा और उसके बेसिस पे वहां पे रेजिडेंसी में मैच करेंगे। क्लियर? स्टेप 2 CS जो पहले होता था, जहां पे वो क्लिनिकल स्किल्स प्रैक्टिकली चेक करते थे, वो अबॉलिश हो चुका है, वो नहीं होगा। और ऐसा नहीं खाली कोविड के लिए क्या है, शायद गोइंग फॉरवर्ड अभी फॉर गुड वो नहीं होगा। ऐसा अगर ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक गलती मैंने की है जिंदगी में, चाहता मैं आपको बताऊं। गलती की नहीं है, मतलब आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग, बट आई फील दैट somebody should talk to students and give them the options available in the world. अगर आप दुनिया को एक क्लासरूम की तरह सोचते हैं तो दुनिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बट आई समटाइम्स सी पीपल गेटिंग क्लोज माइंडेड कि नहीं, मैं तो अमेरिका के बारे में बात होगी तो मैं सुनूंगा ही नहीं। ये मैं था, मैं स्कूल में, कॉलेज में ऐसा था, जब कॉलेज में था तो कोई बोलता था यूएसएमएलई के बारे में बात हो रही होती थी, हम उठ के बात चले जाते थे कि यार इस बारे में बात नहीं करनी। क्यों? किसी ने बोला महंगा एग्जाम है, तो मैंने सोचा यार अपने पास तो पैसे नहीं है, तो बात भी क्या करनी इस बारे में। बट ग्रेजुअली नाउ मैंने लुक बैक आई रियलाइज महंगा एग्जाम है, लेकिन वहां स्टाइपेंड्स भी बहुत ज्यादा है। सो इट्स लाइक पूरा एनालाइज करो, हर अपॉर्चुनिटी को देखो, हर बात को समझने की कोशिश करो। ग्रेजुअली यू विल फाइंड थिंग्स विच मीन टू यू, और वहां पे लीप ऑफ फेथ लेके आप आगे बढ़ पाएंगे। कुछ जगह मिलेगी आपको, हाँ ये मैं करना चाहता हूँ, है ना, ये आप करना चाहते हैं, और जिंदगी आगे बढ़ेगी, आप बहुत अच्छा काम करेंगे।
जो भी आपको आज लग रहा है या किसी ने बोला है कि मेडिकल प्रोफेशन में फ्यूचर नहीं है, सैचुरेशन है, ये वो, कुछ भी ऐसा नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं। एक सोसाइटी के अंदर जो डॉक्टर की जरूरत है, मासिव, बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छे डॉक्टर की आप पूछ नहीं सकते कितनी ज्यादा जरूरत है। सो यू हैव टू बी गुड। व्हाट इज माय डेफिनेशन ऑफ अ गुड डॉक्टर? गुड कौन होगा? किसको माने गुड? एनी थॉट्स ऑन फ्रॉम योर साइड? कौन होगा अच्छा डॉक्टर? कौन हो सकता है? क्या होगा उसके कैरेक्टर? हाँ जी बच्चे, डायग्नोसिस इसीलिए कर ले। अच्छा, और हाँ जी बच्चे, कुछ तो सोच के आए होंगे जो बनना चाहते हो। अच्छा, आपने तो अच्छा बनना है, जनरली कॉम्पिटेंट हो। वेरी गुड। कम्युनिकेशन और इस बारे में ना मतलब बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे लोग, लिटरेचर सबका बहुत कुछ मानना है। मेरा सिर्फ 3 बातें मानना है यहाँ पे। नंबर 1, नॉलेज। इफ यू डोंट हैव नॉलेज about how the human body works in health and in disease, you cannot be a good doctor even if you have good communication skills. I hope so. The baseline is knowledge or competence. अब मुझे पता ही नहीं होगा तो फिर मैं कितना भी अच्छा बात कर लूं, मैं क्या कर पाऊंगा उसके अंदर। दूसरा है हैंड स्किल। ये आप ग्रेजुअली एक्वायर करोगे, नॉलेज देन हैंड स्किल। आपको बहुत अच्छा आता है लेकिन आपका हाथ कांप रहा है, डजंट मेक सेंस, यू कांट बिकम अ ग्रेट सर्जन। सो हैंड स्किल, नॉलेज, हैंड स्किल। Third is empathy. We need to have the ability to understand that we're dealing with people with suffering. So empathy, knowledge, skill, put them together. दुनिया में कहीं पे भी you become a great doctor. Put them together. बढ़ना पड़ेगा आगे। आप, मुझे लगता है कल के एक लैंडमार्क देना है आज, which is we are all talking today to each other in a classroom. It is all possible because of development in healthcare. In medical science, where they invented a vaccine so fast, so we could get better outcomes than we had in Spanish flu 100 years before. ये healthcare का ही progress है और आप ही उसका हिस्सा है, तो बहुत कुछ कर सकते हैं ये। लेकिन इन किसी भी चीज के अंदर कुछ भी करने के लिए वो जो फोर्स है जिससे आप कुछ कर पाओगे, वो फोर्स ऑप्टिमिज्म है, वो आपके अंदर से लानी पड़ेगी आपको। हर दिन लोग हमेशा नेगेटिव बोलेंगे, आसपास के लोग हमेशा बोलते रहेंगे कुछ नहीं होगा, रहने दे, मत पढ़, कोई कुछ नहीं होता, यहाँ पे बैठ के कुछ नहीं होता, ये XYZ। लेकिन अगर आपको ठीक लगता है, आगे बढ़ना चाहिए। जिंदगी में टाइम जितना भी है, वी वांट टू मेक अ मीनिंगफुल इम्पैक्ट, तो अगर आपको ठीक लगता है वो सही डिसीजन है, आगे बढ़ना चाहिए। जितना तेज आप बढ़ेंगे आगे, you start enjoying it more. It's a beautiful profession to be in. Thank you very much. It was a pleasure to talk to you. I just want to invite Dr. Deepti to speak one line. She has been a Miss Cobweb at her own time, and I still remember the day that when Deepti was Miss Cobweb and I was on the other side. Right. I won't take much of your time, but I would just say it's very, very nice to come back to your parent institute, which gives you many memories, and it teaches you so many things. अगर Harding नहीं होता तो I would have never opted for Obs and Gynae. Right, एक ही डिपार्टमेंट है जो यहाँ पे बहुत काम करता है, and that is OBGY. I still remember. I didn't match or get a rank in AIMS because I actually did not give an AIMS paper at all. AIMS PG, I didn't appear for it simply because people will say this to you and they would be saying that. Unfortunately, हम grade करते हैं, AIMS सबसे अच्छा है, फिर MAMC आता है, फिर Harding आता है, मतलब ये चीजें हैं जो हम रोज सुनते हैं, and we have to face it, right? So we were told कि Hardonians का नहीं होता है, okay, very frankly. और मैं एक चीज सच है जो मैं बताने वाली हूँ। Nobody ever told us कि आप पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हो, राइट? हमें सिखाया जाता था यू हैव टू ड्रॉप, 1 साल ड्रॉप करना है, उसमें पढ़ाई करना है, उसके बाद आपका नीट पीजी में सिलेक्शन होगा, विच इज समथिंग दैट आई नेवर बिलीव्ड इन। आउट ऑफ द एंटायर बैच देयर वर ओनली 2 people who cracked the exam and I was one of them. I got a rank. It was not 1, it was not 10, it was 30, but I'm very, very proud of it. And it was an all India rank. I could get any branch that I wanted. Yes, but क्योंकि मैं हार्डिंग में थी, आज भी मुझे वो दिन याद है जब मेरी रैंक आई थी। मैं अपने जो मेरे कुछ प्रोफेसर्स हैं जिनको मैं बहुत मानती हूँ, मंजू पुरी मैम इज वन ऑफ देम। I actually went up to मैम and said, मैम मैं गायनी लेने वाली हूँ, प्लीज मुझे अपने यूनिट में ले लेना।
And Unit A was I mean, it is the craziest unit ever. इतना काम किया उस unit में कि there is no end to it, right? But yes, so मैं एक बार चीज बोलूंगी, a lot of times आप parent institute में जब होते हो और आप decisions लेते हो कि ये करना चाहते हो या वो करना चाहते हो, it is not per se because of the branch. I see a lot of AIMS students here as well, and I think you will resonate with me कि you actually match up to an individual in a branch जिसके जैसा आप बनना चाहते हो. So, you know, वो बहुत जरूरी है कि we must look beyond that as well. Let's internship जब करोगे, be open, see what you get interested in, and किस में काम करके मजा आ रहा है और कहाँ पे, you know, we all seek appreciation, but वो mutual है. जहाँ आप काम करोगे आपको वापस appreciation भी मिलेगा, right? So I would just say that sky is the limit, and Hardonians are no less than anybody else. And eventually, पता है life बहुत बड़ी है. It eventually matters what kind of an individual you turn out to be. You may be very, very intelligent, but if you're not polite enough, yes, you may not be a very good doctor. And on the other hand, as Dr. Sumay said, you need knowledge, you need good skills. Only communication doesn't help, so it's a mixture of everything. But sky is the limit. Hardonians, you can reach anywhere. AIMS के बच्चों को पता है कि वो होशियार हैं. आप already अच्छा कर रहे हैं, आगे भी अच्छा करेंगे. There's no doubt, right? But this is something that I really want to tell Hardonians. Okay, over the last 2 years, Harding के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं. They've matched into top-notch branches. I was calling Kavyanjali also today to talk to you. She secured AIMS PG rank 4, right? In her first attempt, but unfortunately she had a duty, so she couldn't come here. But this is just something that I really want to say. जब कोई कुछ बोलता है ना, आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आप यहाँ पे हो, भाई उसको चैलेंज बना लो, इसको वापस करके दिखाएंगे और तभी चुप कराएंगे. So when somebody says you can't do it in first go, just do it in first go, right? मेरे बैच में जब मेरा रैंक आया था, I told you only 2 people got rank, and people were searching for me internship में ये कौन सी लड़की है जिसका ये रैंक आया है, because people thought नहीं आता, यहाँ पे रैंक नहीं आएगा क्योंकि. But this is just to tell you कि सब कुछ हो सकता है if you really want to do it, and it doesn't mean you have to be a topper in every professional year or a gold medalist. Whenever you realize you can do it from that point forward, right? So all the very best, and each one of you is very, very capable, and you know, you can do whatever you want to do. I would say all bright people should take different branches so that we have good doctors in every branch. सारी branches बहुत अच्छी हैं. Take a good exposure. Please attend your clinics. See what you like. You learn a lot from your bedside clinics. Yes. So and it bedside clinic का मतलब नहीं कि वहाँ किताब खोल के बैठना है. Okay. So you really need to be there when you are there. छोटी चीजें भी जब कर रहे हो, even as you know, if you're saying a cannula, a Foley's catheter, these small things they matter a lot, especially once you become a surgeon. आपको realize होगा कि ये वाली skills बहुत जरूरी हैं, right? Internship में बहुत गंदा लगता है कि मुझसे Foley's डलवा रहे हैं या cannula डलवा रहे हैं, हमारा काम थोड़ी है. But as a surgeon, you would need all these skills. You never know कौन सी चीज कब खुद से करनी पड़ जाए, because that can be life saving. Right? So just go ahead and learn. Don't take it like ये मुझे क्यों करना है या वो मुझे क्यों करना है. And go ahead, learn from it. And wherever you are, चाहे थोड़ी देर के लिए वहाँ क्यों ना हो, just make it a point that you learn at least one thing from there, so that you become a little wiser than you are today. Right? I think I've bored you enough. So all the very best. Thank you everyone for giving us an opportunity to talk to you. And Harding rocks. Yes? Alright, so do you want to ask anything? Anybody? Okay, no, I think Abhi we don't have any questions, but even later on, if you do have, me, Dr. Sumay, we're all available. You can definitely reach out. For that, it's just a matter of reaching out. Yes, so sometimes when you reach out, you don't know who opens what doors for you. Right, so all the very best. Thank you to all the participants. You all rocked the quiz, and I wish you many more success in future too. God bless you all.